So good morning, everybody. Good morning. So, right, I am here to share my GS strategy, both for prelims as well as mains. And I've planned this session. So I want this to be kind of a one-stop destination for all those who are interested to know my strategy. So that is why I'll be a bit comprehensive here. So I'll be covering things like note making, answer writing, my in general overall strategy. So I'm hopeful कि this is going to help all those who are appearing for the first time, as well as all those who are the future aspirants, who are appearing next year or maybe next to next year. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अक्षत जैन की जर्नी के बारे में। आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएट अक्षत ने अपना फर्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट फुल कॉन्फिडेंस के साथ दिया, लेकिन वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए। गिव अप करने के बजाय उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया। उनका सबसे बड़ा लेसन था अटेम्प्ट जल्दी में मत दो। वो स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि यूपीएससी देने से पहले कम से कम 1 साल की प्रॉपर प्रिपरेशन जरूर होनी चाहिए। So just a brief introduction about myself. I am 23 years old. I have done my engineering from IIT Guwahati. I graduated in 2017. So I started my preparation in the final year itself when I realized that this is what I want to do. और जो है this is my second attempt. एक attempt मैंने जो है directly graduate होकर दे दिया था as soon as I graduated in 2017. तो वो attempt जो था that was after 3-4 months of preparation. So that was kind of a blessing in disguise that I was not able to clear prelims that time. Why? Because I was not at all ready for the mains. So the first important point for all those who are going to appear next year or who are the future aspirants, please have 1 full year of preparation behind you. And in that period be mains ready. ऐसा प्लान कीजिए कि एक ही बार निकाल दोगे। वो अलग बात है रिजल्ट जो भी रहे, but make such a plan that you are going to clear in the very first shot itself. Okay, so ये पहली बात रही। उसके अलावा जो है I'll just highlight that I have not done any coaching for general studies. I did take it for my optional, which is anthropology. I took it from Veds ICS. और apart from that I joined test series before prelims itself. So एक तो ये जो inertia रहता है, that fear we have of test series, please, of writing test, please remove that. So I took GS test series from Vision IAS itself and anthropology की from L2A, that is in ORN again. ठीक है, so मेरी preparation Delhi से ही रही and this is kind of a overall brief about myself. नेक्स्ट पार्ट में अक्षत जैन अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर स्ट्रांग फोकस किया, साथ ही डेली करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया और जो भी पढ़ते थे उस पर रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। उनका क्लियर प्लान था, जुलाई से अक्टूबर तक जीएस कोचिंग के साथ मैक्सिमम ऑप्शनल कवर करो, नवंबर से फरवरी GS1, GS2 और GS3 पर सीरियस फोकस शुरू करो और मार्च से फुल फोकस प्रीलिम्स प्रिपरेशन पर शिफ्ट कर दो। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, strong optional plus daily answer writing plus smart timeline planning. So I'll just share what I planned. So it was July 2017 at that time. This is clear, the handwriting is clear, right? So July to October end, I was very clear that I am going to focus on my optional first. I recommend all of you to first focus on your optional. Because optional is very important, it is a game changer. Everybody of you I think is aware of that. और that is why मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले optional पे ध्यान दिया। तो इस दौरान I was very clear what I'll do. I'll read current affairs obviously. And I'll do daily answer writing. 3 questions मैं लिखता था on these current affair questions. आपको पता है देयर आर आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म्स, इनसाइट्स है, IAS बाबा है, तो वहाँ पे जो है क्वेश्चंस आते हैं इन पे। मेरी स्टैटिक नॉलेज इतनी नहीं थी कि मैं जो है उन पर भी क्वेश्चंस कर सकूं, बट एटलीस्ट व्हाट आई एम रीडिंग, व्हाट द एडिटोरियल्स आई एम रीडिंग, द न्यूज़पेपर आई एम रीडिंग, उस पे आई विल स्टार्ट टू राइट आंसर्स, ताकि जो है अभी से आई गेट अ आइडिया ऑफ हाउ टू राइट आंसर्स, बिकॉज दिस इज व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स। इसके अलावा पूरा दिन मेरा जो है ऑप्शनल में जाता था। कोचिंग हो गई, सेल्फ स्टडी हो गई, उसके अलावा पूरा दिन मैं ऑप्शनल करता था।
ठीक है, आई अंडरस्टैंड पीपल है, आप जो है जीएस की कोचिंग ले रहे होंगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज योर टाइम, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज प्लीज़ आप जो है अपनी कोचिंग के बाद बेशक रिवाइज कीजिए वट एवर इज़ बीन टॉट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर टाइम यू हैव प्लीज़ डिवोट टू योर ऑप्शनल, बिकॉज अगर by this particular period you are able to complete maximum syllabus, I'm not saying 100%, but जितना ज़्यादा कर सकते हैं you will be in a comfortable position. और ऑब्वियस बात है हर किसी के ऑप्शनल्स अलग रहते हैं, कुछ का जो है इस पीरियड में नहीं हो सकता, बट एक आइडिया रखिए कि कैसे मैक्सिमम ऑप्शनल आप कवर कर पाएंगे. ठीक है, आफ्टर दिस फ्रॉम नवंबर टू February end, I hope I'm not too loud, sometimes I get too loud. So November to February में, then I started with GS and GS 1, 2, 3. GS 4 I thought I can do it after prelims. If you people think that you have the time, then obviously आप जो है पहले भी कीजिए. But I think it is manageable after prelims as well. GS 4. So now I started to focus on GS 1, 2, 3 during this particular period. Current affairs obviously चलते रहे. Natural बात है, you will not stop reading the newspaper. But मैंने daily answer writing नहीं की. करंट अफेयर्स मैंने डेली आंसर राइटिंग अब छोड़ दी. वाई? बिकॉज आई रिप्लेस देम विद फुल 3 hour टेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पीरियड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, मेरे दिमाग में इनिशियली, आप सबके दिमाग में एक डर रहता है कि यार प्रीलिम से पहले हम कहाँ से आंसर लिख देंगे, कैसे कर देंगे 3 hour की टेस्ट, हमें उतनी नॉलेज नहीं है, हमें उतना आता नहीं है. तो यार प्लीज़ ये जो फियर है, दिस इनर्शिया, ट्राई टू जस्ट विन ओवर इट, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. ठीक है, बिल्कुल बात यह है कि प्रीलिम्स के बाद भी काफ़ी लोग हैं जो पहली बार आंसर लिखते हैं एंड दे आर एबल टू क्लियर इट, बट दैट इज़ डिफ़िकल्ट. और इसका मेन रीज़न ना करना, अगर आप खुद सोचिए ना सब अपने दिमाग में एक बार अच्छे से, तो दैट इज़ फियर. आप खुद एक बार सोचिए, आप जो है बहाने देंगे कि यार मैं जो है अभी तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो कोई मतलब नहीं है आंसर लिखने का, बट अल्टीमेटली जो है आपके अंदर एक दिमाग में डर बैठा रहता है कि यार मैं अभी आंसर लिख ही नहीं सकता. एंड ट्रस्ट मी, मैं जब पहले टेस्ट लिखता था आई कुड हार्डली कंप्लीट 10 to 12 क्वेश्चंस, और वो भी इतना गंदा लिखता था. अभी मैं अगर देखूं अपने पेपर तो रैंक 2 तो क्या मुझे रैंक 2 लाख भी ना मिलेगी. सही बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू. सो प्लीज़ स्टार्टिंग में लगिए, गंदे आंसर्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. यूपीएससी वो कॉपी तो यूपीएससी को नहीं मिल जाएगी जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, है ना, तो आपको किस बात का डर है. सो प्लीज़ जो है फोकस ऑन आंसर राइटिंग. मैं अभी अच्छे से बताऊंगा कैसे मैं आंसर्स लिखता था, हाउ आई यूज्ड टू प्लान थिंग्स. सो अभी मैं आपको एक ओवरऑल दे रहा हूँ आइडिया, और फिर जो है मार्च ऑनवर्ड्स डेडिकेटेड प्रीलिम स्टडी. प्रीलिम्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग काफ़ी शायद प्रीलिम्स यहाँ दे रहे होंगे, कुछ ने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना. सो दैट इज़ वाई आई वाज क्लियर कि मार्च जैसे ही चालू होगा, एक हफ्ते बाद आई विल स्टार्ट डेडिकेटेड प्रीलिम स्टडी. सो ये जो ओवरऑल प्लान मैंने बनाया, मैंने जो है जुलाई में बना लिया था, एंड आई वॉज वेरी वेरी क्लियर विद इट, एंड माई एंटायर एनर्जी वॉज डिवोटेड टू जस्ट अचीव दिस पर्टिकुलर प्लान. My entire tension focus was on this particular plan. So what I would suggest is, especially for all those who are going to appear next year or maybe after a few years, ये एक ऐसा प्लान बनाइए, ओवरऑल फ्रेमवर्क. देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी एबल टू फॉलो इट 101%. मैं खुद नहीं कर पाया, बट व्हेन यू हैव अ टारगेट, आप उसको 75%, 60% भी फॉलो कर लेंगे, दैट इज़ वेरी गुड. सो हैव दिस बेसिक आइडिया, ओनली अ बेसिक आइडिया. ये देखिए तो बेसिक ब्रॉड आइडिया ही है. मैं एकदम स्पेसिफिक्स में नहीं जा रखा कि भाई कैसे अब एक एक चीज़ करूँगा, दिन का हिसाब क्या रहेगा, बट एक ओवरऑल मेरा आइडिया ये है, ताकि आई एम एबल टू कंप्लीट माई ऑप्शनल, माई जनरल स्टडीज, एंड आई एम रेडी फॉर मेन्स बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ. एंड आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद प्रीलिम्स एज वेल. कुछ लोग प्रीलिम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो फेटल. तो ये ओवरऑल मेरी स्ट्रैटेजी रही.